New topic, alternating current. New topic of the electrical engineering subject is AC, alternating current. Alternating current और AC. तो फर्स्ट हमने कंप्लीट किया था डीसी सर्किट. अभी देखेंगे अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है. फर्स्ट कंपेयर द अल्टरनेटिंग करंट विद द डीसी करंट. Why we are using the AC current in place of DC, or what are the differences between AC and DC, what are the advantages of AC over DC, why AC is used generally in the industrial purpose, transmission and distribution of the supply. Why we are using alternating current? Because there are some advantages of the AC. Keeping in view of generation, transmission and distribution, there are some advantages of the AC. Generation. In generation, AC can generate very high voltage, 11,000 volt or more voltage, but DC can generate only 650 volts. For same frame of size of AC machine, generation has more output than DC generator. The same size of AC generator or motor can work more efficiently than the DC generator or motor. Less possibility of faults in AC, fault आना, damage होना. Possibility of AC generator is less than DC generator. AC generator में losses कम आते हैं, वहाँ पे जनरली ब्रशेस वगैरह लगे रहते हैं, तो स्पार्किंग होती है, तो ज़्यादा लॉसेस आते हैं और ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस रहते हैं वहाँ पे बिकॉज ऑफ द स्पार्किंग प्रॉब्लम. तो AC generators are the possibility of faults is less than the DC generator. Due to easy construction, cost of AC machine is less than the cost of DC machine. DC motor और generator comparatively कम वैल्यू रहती है, उनकी कॉस्ट कम रहती है. सेम रेटिंग का यदि देखेंगे तो कॉस्ट कम आता है डीसी के कंपैरेटिवली. कंस्ट्रक्शन ऑफ एसी जनरेटर इज मोर इजी देन डीसी जनरेटर. डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर भी रहता है जो एसी को कन्वर्ट कर देता है, तो कॉम्प्लिकेशंस आर लेस इन एसी जनरेटर देन डीसी जनरेटर. Transmission meaning of that to transmit the electrical signal from one place to another place is the transmission. This can be done with the help of line communication or with the wireless communication or by the satellite communication. You can communicate the person or signals you can send. So generally transmission is the line transmission, high power generation. So AC can be step up and step down with the help of transformer, but DC cannot be used in the transformer because DC transformer does not work on DC, because the flux generated by the DC is very small value which is linked to the secondary winding of the transformer is a very small value. So the induced EMF in the secondary is very small, so DC transformer cannot work in the DC supply. Voltage regulation is good in case of AC machines. AC machine का voltage regulation का मतलब change in the voltage at the output is less in AC machines. AC machines can be built up for higher inputs. ज़्यादा input ले सकते हैं AC से, उसके लिए बनाते हैं हम जनरली. सो डीसी में पावर कम इनपुट पे काम करता है, इसलिए AC मोर एफिशिएंट. कैन वर्क फ्लेक्सिबिलिटी इन द इनपुट, मोर वैल्यू ऑफ द इनपुट कैन बी अप्लाइड फॉर द AC machines which is not possible in the DC machine. The efficiency of AC machine is very high comparatively DC machines because losses in the DC machines are more. AC machines can be converted in DC at cheap rate, और हम AC को DC में convert कर सकते हैं with the help of rectifiers, semiconductor devices and regulated power supplies, which is the cost of converting is very cheap, or there is no much cost in converting AC into DC. It is very
economical to convert the AC into DC. But the disadvantages are speed control of DC machine is accurate. Speed control machine का easy है कहाँ पे DC में, but not in AC. DC can be used for electrochemical, electroplating और battery charging, electrolytic analysis में AC नहीं यूज होता है जहाँ पे हमें पोलराइजेशन करना होता है या सिग्नल को क्या करना होता है, आयोनाइज करना होता है चार्ज को, तो वहाँ पे हम DC यूज करते हैं, AC नहीं करते हैं क्योंकि AC आयोनाइजेशन नहीं कर पाता है। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है कि जो एक मटेरियल है वो सेपरेट हो जाता है, तो वो सेपरेशन भी नहीं हो पाता है। बैटरी चार्जिंग भी नहीं होगा क्योंकि AC में वेरिएशन होता है, प्लस साइकिल और माइनस साइकिल आता है, तो एक बार प्लस वोल्टेज आएगा और माइनस, तो चार्जिंग भी नहीं हो पाता है। सो चार्ज फॉर द चार्जिंग पर्पज DC यूज एंड फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल वर्क, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोलिसिस। और एक बहुत बड़ा एडवांटेज है DC का कि ट्रैक्शन, हाई लोड को उठाने के लिए ट्रॉलीज है, क्रेन्स हैं, ट्रैक्शन है इन द ट्रेन्स को खींचने के लिए, ट्रैक्शन के लिए DC मोटर यूज होता है। रिलेज वगैरह रहते हैं, वो कंट्रोलर का काम करते हैं, तो वहाँ पे कहाँ क्या यूज करते हैं, मोर एफिशिएंटली DC का यूज होता है इन कंपैरिजन टू AC। So these are the some points regarding the AC supply and DC supply. There are some advantages and disadvantages of both the supplies, and sometimes AC is beneficial, sometimes DC is beneficial. In the some purposes AC only DC is used, and in some cases AC is more beneficial. So according to the utility and applications, AC and DC are used in the industrial purposes. Now AC voltage, how can generate the AC voltage? Generation of AC voltage. Generation of AC voltage. Single phase AC जनरेटर। सिंगल फेज के लिए क्या लेंगे हम, एक मैग्नेट लेंगे, परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जाएंगे फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, दे ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। इनसाइड द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर द कलेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस इज द फ्लक्स। जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं ये कहाँ से जाते हैं, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। इसको कलेक्शन ऑफ दीज लाइन को क्या कहते हैं, फ्लक्स। इसके अंदर हम यदि ऐसा कोई रोटर रख दें या क्या रख दें, यहाँ पर कोई कॉइल रख दें। इफ यू कट द मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को यदि कोई कंडक्टर कट करता है तो उसमें एक EMF इंड्यूस हो जाता है, और इंड्यूस EMF का डायरेक्शन बाय द लेफ्ट हैंड रूल ऑफ द फ्लेमिंग से मिलता है। ये बताता है करंट का डायरेक्शन फिंगर, ये मैग्नेटिक फील्ड बताता है, ये फोर्स। यदि हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, करंट फील्ड फोर्स, फील्ड हमारा ऐसे जा रहा है, फोर्स हमने यदि नीचे को लगाया है इसमें डाउनवर्ड, तो करंट फील्ड फोर्स, तो यदि फोर्स हमने ऐसे लगाया है, फील्ड ऐसा है, तो करंट कहाँ आएगा, ये डायरेक्शन में करंट इन दिस कॉइल ऐसे इंड्यूस होगा, ऐसे। If you are allowing magnetic line of forces are traveling from north to south to north in the magnet, inside the magnet, and magnetic you are applying the force downward, then the direction of current is current field force. If current is in this direction, magnetic line of force is in this direction, then force is downward, then the current is in this direction, अप टू डाउन। सो ये कंडक्टर है, इससे हम यदि मैग्नेटिक फील्ड कट कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, तो क्या होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड करेगा तो इसमें एक इंड्यूस EMF आएगा, और पाथ हमने यदि क्लोज कर दिया तो इसमें एक करंट फ्लो होने लगेगा, और करंट का डायरेक्शन लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से देख सकते हैं हम,
ये जो फिंगर है मिडिल फिंगर, ये बताता है द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये बताया था मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, एंड थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर। यदि कंडक्टर पे हमने फोर्स लगाए, उसको घुमाए इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, यदि वो इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ऐसे इस तरह घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या होगा, कंडक्टर में ये करंट का डायरेक्शन मिलेगा हमें, और ये वाले आर्म में अपवर्ड मिलेगा और इसमें डाउनवर्ड मिलेगा। सो यदि हम कोई कंडक्टर को उससे मैग्नेटिक फील्ड कट कराते हैं तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और ये ही वर्किंग प्रिंसिपल है जनरेटर का। तो हमें सिंगल फेज सप्लाई मिल जाएगा। और ये जो फ्लक्स होता है, ये फ्लक्स इज द कलेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, या एंगल थीटा। तो ये साइनसॉइडल होता है, और जो इंड्यूस ईएमएफ है वो एन डी फाई बाई डी टी होता है। तो इसका हम डेरिवेटिव भी लेंगे तो वो भी साइनसॉइडल या कोसाइन आएगा, उसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं 90 माइनस थीटा करके, तो वो भी साइनसॉइडल होगा। तो हमारा जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज डेवलप होगा ये कंडक्टर में, वो अल्टरनेटिव नेचर होगा और वो साइनसॉइडल होगा। अब साइनसॉइडल जब नेचर होगा तो हम देखेंगे कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यहाँ से हम एंगल यदि मेजर करते हैं कंडक्टर का, तो यदि एंगल ये 30 डिग्री बना रहा है तो इतने मैग्नीट्यूड का वैल्यू मिलेगा हमें। तो हमें जो इंड्यूस ईएमएफ होगा उसका वैल्यू, या करंट होगा उसका ये वैल्यू मिलेगा। यदि वो 60 डिग्री बनाएगा ये कंडक्टर इस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस से एंगल, तो हमें ये हाइट का, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये हमें ये हाइट का वोल्टेज मिलेगा जैसे बढ़ता जाएगा। यदि 90 डिग्री तो मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा या मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा, उसका वैल्यू ये होगा। फिर हम 120 डिग्री लेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा हमें, इतना वोल्टेज। और 150 यदि लेंगे हम तो ये वोल्टेज मिलेगा या करंट मिलेगा हमें, और 180 लेंगे तो जीरो मिलेगा। तो यदि इनको हम प्लॉट करते हैं, साइकिल्स को यदि हम प्लॉट करते हैं ऑन द ग्राफ पेपर, द एंगल्स आर 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री। तो दो साइकिल के लिए, पहला 0 to 180 के लिए, दो पार्ट के लिए, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। ये वैल्यू हम यदि प्लॉट करते हैं, 0 पे 0 वैल्यू आती है, 30 पे राइज होगा, 60 पे और थोड़ा राइज होगा, और 90 पे मैक्सिमम होगा। फिर उसके बाद वो कम होता जाएगा, लेकिन दोनों भी वैल्यू पॉजिटिव आते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव ही मिलेंगे, और ये कम होते जा रही है वैल्यू, और कम हो गया 180 पे 0। तो इसका ग्राफ यदि प्लॉट करेंगे तो हमें ऐसा ग्राफ मिलेगा। दिस इज द साइनसॉइडल ग्राफ, और दिस इज द 1/2 साइकिल ऑफ दिस ग्राफ। और यदि हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, एंगल 210 लेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी। 180 प्लस 60 करेंगे तो 240 डिग्री पे ये मिलेगा, 270 पे ये मिलेगी वैल्यू। और यदि फिर हम 300 पे जाएंगे तो ये वैल्यू मिलेगा हमें। और यदि हम 270 प्लस 60 330 पे जाएंगे तो ये वैल्यू मिलेगा, और 360 पे जाके 0 होगा। अब लेकिन ये वैल्यू दोनों साइन के माइनस आते हैं थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये सेम वैल्यू 210 पे 210 के बाद 240 पे 240 डिग्री, और फिर हमारा 270 आएगा 270 डिग्री, और फिर हमारा ये ग्राफ आगे बढ़ के जाएगा 310, 340, और ये ग्राफ हमने प्लॉट किया तो ऐसे ही साइकिल आएगा, यहाँ पे मैक्सिमम आएगा 270 पे माइनस में आएगा मैक्सिमम। दिस इज माइनस मैक्सिमम वोल्टेज, दिस इज प्लस मैक्सिमम वोल्टेज और करंट। दिस ग्राफ इज साइनसॉइडल ग्राफ। और कैसा ग्राफ मिल रहा है हमें, ये टोटल एक साइनसॉइडल वेव मिल रहा है। 0 to 180 is a positive half cycle, 180 to 360 is a negative half cycle, and one peak value comes at 90 degree at positive peak, and negative peak maximum value is at 270 degrees angle. So this waveform obeys the sine rule. So this is known as sinusoidal wave, and this is the generation of alternating current or voltage. Now we complete the one cycle for
0 to 360 degree. There are two halves of this cycle. This is 30 degree, this is 60 degree, this is 90 degree, this is 120, 150 and 180, 210, 240, 270, 300, 330 and 360. Now maximum value is at 90 degree and at 0 the value is 0. Sin 180 is 0. At 270 maximum value in negative direction, at 360 value is 0. So we got the two cycles. One is the positive half cycle and one is the negative. If you are considering the current, then I is equal to Im sin omega t. This is the graph current versus angle omega t. And you are plotting the value of the omega t or angle, the value of the current with respect to the angle omega t or theta. As the theta or omega t changes, the value of the current changes, and at at start this current is 0 at 0 degree angle, and it becomes maximum at 90 degree, and at 180 degree again it becomes 0. At 270 degree its value will be maximum minus, and peak value will be at the 270 degree, but this value is negative value. Thereafter this value decreases and becomes 0 at 360 degree. So a positive and a negative half cycle is obtained between the 0 to 360 degree, and time taken by this cycle to complete this cycle is known as time period of the wave. तो इस काम को टाइम को क्या कहेंगे हम? This time is the time period of the wave, and this is the peak value of the current. This is the negative peak value of the wave, and positive to negative peak के value को क्या बोलते हैं? Peak to peak value of the current. And this value I, which is changing with the time, is known as instantaneous value. Instantaneous value of the current. Value of current. And this is the Im is the peak value of current. Im is the peak or maximum peak value of current. This is the peak value of current or maximum value of current. So we obtain a cycle, and this cycle gives the information regarding the nature of the waveform. The nature of the waveform is sinusoidal. With the time the value of the current changes, and or with the angle the value of the current changes according to the sine rule, and we obtain a graph. This graph is a positive half cycle between 0 to 180 and a negative half cycle from 180 to 360, and this value which changes with the time and which depends on the time is known as instantaneous value of the current, and this instantaneous value of the current is given by the formula Im sin omega t, where Im is the peak value of the current and omega t is the angle, and this Im is the peak value, and this peak value is obtained in a one complete cycle at 90 degree and at 270 degree. There are two peak value, plus Im and minus Im, and the plus Im and minus Im, the value of the current is known as peak to peak value. प्लस Im और माइनस Im के बीच के वैल्यू को क्या बोलेंगे? पीक टू पीक वैल्यू ऑफ द करंट. So we obtain the information regarding the alternating current, and this information is that we obtain the maximum value. We know the maximum value of the current or peak value of the current. We know the instantaneous value of current. We know the peak to peak value of the current. Also we look that the time the wave to complete its one cycle is known as the time period of the wave, and the second one is the frequency. Frequency is the 1 upon time or time number of cycles in 1 second is known as the frequency of the waveform. और घर में हाउस होल्ड सप्लाई जो हमारा होता है उसमें जो फ्रीक्वेंसी है इन एशियन कंट्रीज इज 50 हर्ट्ज एंड इन द यूरोपियन एंड एडवांस कंट्रीज इज 60 हर्ट्ज. दिस इज एट 230 वोल्ट. दिस इज द RMS वैल्यू of the voltage at 50 hertz,
and 260 volt supply in western countries or the developed countries is at 60 hertz 200 volt, because the cost of this transmission is comparatively larger but the fluctuations are less. So we क्या देखा हमने कि जो अल्टरनेटिंग करंट है वो किस पे डिपेंड करता है, चेंज ऑफ द एंगल पे डिपेंड करता है और साइन रूल ओबे करता है, और साइन रूल के अकॉर्डिंगली हमें दो वेव फॉर्म मिले, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल, और पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल में जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड ऑफ द वेव। और एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल मिला के क्या बनता है, ये कंप्लीट साइकिल, दिस इज नोन एज साइनसॉइडल वेव या साइन वेव। और एनी टाइम वैल्यू ऑफ करंट को क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। और वी कैन फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ दिस साइकिल एंड दिस साइकिल। सो एवरेज वैल्यू ऑफ द कंप्लीट साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल इज पॉजिटिव, नेगेटिव हाफ साइकिल इज नेगेटिव, यू टेक द सम ऑफ दीज टू वैल्यू, द एवरेज वैल्यू फॉर वन कंप्लीट साइकिल इज 0। तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है तो वो उसमें पीक वैल्यू तो एक बार ही आता है, एवरेज वैल्यू 0 आता है, तो फिर व्हाट इज द वैल्यू विच इज टेकिंग प्लेस, व्हाट इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द एसी। एसी का कौन सा इफेक्टिव वैल्यू है, जो मैं बोल रहा हूँ 230 वोल्ट का होता है और जनरली 1 एम्पियर करंट आता है। सो व्हाट वैल्यू इज दिस, इज इट इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इज दिस पीक वैल्यू, और दिस इज एनी एवरेज वैल्यू, और दिस इज इफेक्टिव वैल्यू। इफेक्टिव वैल्यू को ही बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू ऑफ द करंट। और वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट कैसे निकालते हैं, क्योंकि एक साइकिल का यदि हम एवरेज निकालते हैं तो पॉजिटिव साइकिल का एवरेज आता है प्लस आई एवरेज, एंड द एवरेज ऑफ नेगेटिव साइकिल इज माइनस आई एवरेज। दोनों का सम करेंगे तो 0 आएगा। तो इसका मतलब ये वेरिंग नेचर ऑफ करंट है, यदि एवरेज निकालेंगे तो हमारा करंट 0 आएगा। सो एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट इज नॉट ए करंट इन अल्टरनेटिंग करंट। तो फिर कौन सा होगा, फिर हम क्या करते हैं, वी टेक द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट, टेक द स्क्वायर ऑफ दिस वैल्यू, इसका भी स्क्वायर लेंगे, नेगेटिव हाफ साइकिल का भी स्क्वायर लेंगे, फिर उसका एवरेज लेंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लें। तो उसी को क्या बोलते हैं हम, रूट मीन स्क्वायर या आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज। इसका मीनिंग ये है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, प्लस साइकिल का भी और माइनस का भी, और एवरेज ले लेंगे और उसके बाद हम उसका स्क्वायर रूट ले लें तो हमें क्या मिल जाएगा, रूट मीन स्क्वायर। मीनिंग ऐसा है, स्क्वायर करेंगे फिर मीन का मतलब एवरेज निकालेंगे, फिर वैल्यू और आरएमएस वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट। In the next video we will take the mathematically these values and we will explain in the further topic.